ہم کیا چاہتے آزادی، ہم کیا چاہتے آزادی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ہم کیا چاہتے آزادی، ہم کیا چاہتے آزادی، کون کرے گا ترجمانی سید علی شاہ گیلانی، کون کرے گا ترجمانی سید علی شاہ گیلانی، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، آزادی، ہم کیا چاہتے آزادی، اللہ اکبر، جو کیا چلے گا نظام مصطفیٰ، جو کیا چلے گا نظام والا گیلانی، رکنے والا گیلانی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، چاہے جیل بھیجو آزادی، چاہے ڈنڈے مارو آزادی، چاہے ہاتھ لگا دو آزادی، زور سے بولو آزادی، زور سے بولو آزادی، یہ حق ہماری آزادی، یہ دل کی دھڑکن آزادی، یہ آنکھوں کا ٹھنڈا آزادی، شہادت کے وارث زندہ ہے، زندہ باد، انڈیا گول بیک، فل فور Freedom! فل فور آزادی، آزادی، راستے روکے گئے اور پولیس اور فورسز کو سڑکوں اور ناکوں پر بٹھایا گیا۔ یہ بھارت کی جمہوریت کا نظارہ ہے۔ سب لوگوں کو اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ جمہوریت کے نعرے ہیں لیکن دوسری طرف جبر، تشدد اور بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارا حضرت بل جانے کا پروگرام تھا۔ 9 جولائی کے بعد سے جتنے بھی یہاں مظاہرے ہوئے پرامن ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ گئے، میدانوں میں آئے، عیدگاہوں میں گئے، لیکن کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی لاٹھی نہیں تھی اور کوئی گرنیڈ نہیں تھا، کوئی پیلٹ گن نہیں تھا۔ یہ سب ہتھیار بھارت کی پولیس اور فورسز نے استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں اس وقت 60 کے قریب ہمارے جوان جو شہید ہو چکے ہیں۔ 100 سے زیادہ ایسے جوان ہیں جن کی بینائی ہمیشہ کے لیے چھینی گئی ہے اور 500 کے قریب ایسے لوگ ہیں، جوان ہیں جو زخمی ہیں اور جو ہسپتالوں میں سڑ رہے ہیں اور جو حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ ساری صورتحال بھارت کو زیب نہیں دیتی جب وہ جمہوریت کے دعوے کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جو بھارت کے سپاہی ہیں، آپ لوگوں کو بھی ویسے انسان دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا طرز عمل کسی بھی انسان کے ساتھ اور کسی بھی قوم کے ساتھ کیا جانا مناسب ہے یا نہیں۔ یہاں فوج بھی ہے، یہاں پولیس بھی ہے، پولیس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جمہوریت کے نام پر بدترین قسم کی فسطائیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ سارک کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد میں، وہاں بھارت کی طرف سے ان کے وزیر داخلہ تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جہاں ٹیررزم ہو ایسے ملکوں کو آئسولیٹ کیا جانا چاہیے۔ میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، ان تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ بھارت پر چسپاں ہوتا ہے کہ اس کو ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے آئسولیٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے وہ سب سے زیادہ بھارت کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ، ایک تو ٹیررزم ہوتا ہے کوئی فرد گن اٹھائے یا کوئی گروپ فرد یہ گن اٹھائے، لیکن جب کوئی اسٹیٹ اور کسی قوم کا حق پیدائش چھیننا چاہے، ٹرمینیشن، تو ایسے لوگ جو اسٹیٹ ان چیزوں کو روکنے کے لیے آتی ہے تو اس کی فوج بھی ہوتی ہے، پولیس بھی ہوتی ہے اور ان کے جیل خانے بھی ہوتے ہیں اور ان کا انٹروگیشن بھی ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ پونچھ میں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف اس میں جموں صوبے میں ایک طرف فوج ہے، دوسری طرف پولیس ہے، دوسری طرف VDCs ہیں 28,000 سے زیادہ، اور پھر
10,000 लोगों को गन का लाइसेंस भी दिया गया है और वहाँ लड़कियों तक को ये गन चलाने की तरबियत दी जा रही है। और आरएसएस के बहुत से जवान उन्होंने ऐलान ये मार्च किया गन लेकर। तो इस तरह जहाँ हिंदुस्तान ये इस तरह खुले आम ये इसका बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है, टेररिज्म का मुजाहरा कर रहा है, उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो दूसरे मुल्कों पर इसका इल्ज़ाम लगाए। सबसे पहले भारत जो है बदतरीन किस्म के टेररिज्म का मुजाहरा कर रहा है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हिंदुस्तान में भी आप याद रखें कि 47 में 5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया और आज भी वहाँ ये मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, दलितों के साथ और सिखों के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये गुजरात आप लोगों को भूल नहीं जाना चाहिए। 2002 में वहाँ 3,000 मुसलमान बेरहमी के साथ कत्ल किए गए और 2 दर्जन से ज़्यादा जिनको आग में ज़िंदा जलाया गया, हामला ख़वातीन के शिकम चाक किए गए और उन बच्चों को निकाल कर एक एक टुकड़ा करके आग में धकेल दिया गया। ऐसा टेररिज्म, ऐसा इंसानी सोच रवैया ये भारत जो बरत रहा है और फिर वो दूसरों को इल्ज़ाम दे कि भाई ये टेररिस्ट हैं और इनको आइसोलेट किया जाना चाहिए। मैं हिंदुस्तान के, भारत के वज़ीर दाखिला तक और उनके वज़ीर आज़म तक भी ये पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत हथियार जमा कर रहा है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बर्बरियत और टेररिज्म का मुजाहरा किया जा रहा है, ख़ास तौर जम्मू कश्मीर में, वो भारत है। और मैं उन तक ये भी पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि अब आप पुलिस के बजाय और फोर्सेस के बजाय, चाहे CRPF हो, चाहे BSF हो या दूसरे फोर्सेस हों, अब फ़ौज को भी बुलाया जा रहा है। और फ़ौज को भी बुलाया जाने का मतलब ये है कि यहाँ कत्ल आम होगा। मैं हिंदुस्तान के लीडरों तक आपकी वसातत से ये पैगाम पहुँचा देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत ने ये अज़्म किया है कि हम इंशाअल्लाह भारत के फौजी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे और वो आज़ादी हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, चाहे हम सब की जानें जाएँ, लेकिन हम अब हिंदुस्तान की ग़ुलामी और हिंदुस्तान के फौजी तसल्लुत पर कनाअत नहीं करेंगे। क्योंकि 70 साल तक हमने भारत का तशद्दुद देखा है, बर्दाश्त किया है, सहा है और फिर आज हमारी कौम ने, मज़लूम कौम ने ये अहद कर रखा है कि आज जो हम जदोजहद कर रहे हैं ये अवामी जदोजहद है, ये सिर्फ मास मूवमेंट है और ये मास मूवमेंट जो है ये इंशाअल्लाह पुरअज़्म है। और पुरअज़्म होने का मतलब ये है कि हमने अज़्म कर रखा है कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से भारत के फौजी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे। क्योंकि किसी कौम के लिए ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है कि वो फ़ौज के तसल्लुत में रहे, वो फ़ौज के कब्ज़े में रहे, वो फ़ौज के साए में रहे और वो फ़ौज उनकी इज़्ज़त भी लूटे, उनकी असमत भी लूटे, उनका दीन भी लूटे, उनका ईमान भी लूटे, उनकी ज़ुबान भी लूटे, उनके कुदरत के दिए हुए वसाइल भी लूटे, सब कुछ लूटे, सबसे ज़्यादा उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करे। ये चीज़ हमेशा के लिए कोई कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये पैगाम हिंदुस्तान के, भारत के लीडरों तक पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ की जो पुलिस है उनको मैं फिर ये बता देना चाहता हूँ कि बार बार मुसलसल हम तक शिकायतें आती हैं कि पुलिस यहाँ बहुत ज़्यादती कर रही है और पुलिस के साये में यहाँ बहुत जबर हो रहा है। रातों में लोगों के मकान ढाए जा रहे हैं, खिड़कियाँ तोड़ी जा रही हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं। अभी यहाँ अशबल छतबल में जो जवान शहीद किया गया है वो बगैर किसी वजह के, उसके पास बंदूक नहीं थी लेकिन कत्ल किया गया। इसी तरह बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। ये ज़िला कुलगाम में क्या वो है एरिया नहीं, वो वहाँ सैकड़ों लोगों को गिरफ़्तार किया गया है
اور ان پر तशद्दुद किया जा रहा है। और ये जबर और जुल्म जो किया जा रहा है ये बहरहाल ये जुल्म है और इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और मैं ये भी फिर दोहराना चाहता हूँ कि हमारी जद्दोजहद सदाकत की जद्दोजहद है। इसमें हमारा जो प्रोग्राम, हमारा जो उसूल है वो मबनी पर सदाकत है। हमारा जो मुतालबा है, हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मुतालबा कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने 18 करारदादों पर दस्तखत किए हैं जिनमें यह तस्लीम किया गया है कि जम्मू कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बी गिवन right to self-determination so that they will decide their future whether they want to be with India or accede to Pakistan or any other option they will adopt. नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। हम क्या चाहते हैं? आजादी, हम क्या चाहते हैं? आजादी। कौन करेगा तर्जुमानी? हैदर अली शाह गिलानी। कौन तकबीर, अल्लाहु